तूने अभी कुछ एग्जांपल दिया राइट, तो अभी तूने काफी एमएनसीज में काम किया राइट, और सिंस अभी हम हाँ हमेशा। पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में बात की, लेगेसी कोड और इन सब चीज से रिलेटेड, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट असाइनमेंट कैसे होता है? क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ना एमएनसीज में ही प्लेस होते हैं जैसे वो कॉलेज से पास आउट होते हैं, तो हम हम्म। सबको लगता है कि मेरे को एआई पे काम करना है, मशीन लर्निंग में काम करना पहले है। पहले पहला चीज तो मतलब ऐसा, मेरे को ये तो पता है कि आजकल लाइक एवरी अदर गाय इन द कॉलेज इज वर्किंग ऑन एआईएमएल, बट टू बी ऑनेस्ट दे आर नॉट दैट मच जॉब्स इन एआईएमएल। लाइक लोग पागल तो हैं एआईएमएल के लिए, नो डाउट एआईएमएल इज द फ्यूचर एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज बिकॉज ऑफ दैट, बट आई डोंट थिंक इंडस्ट्री में उतना जॉब्स हैं अभी। अभी आई डोंट थिंक देयर आर, लाइक इन इंडिया आई कुडंट सी लाइक जितनी जॉब्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, या लाइक जितनी जॉब्स लाइक बेसिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, उतनी एआईएमएल में तो आई डोंट सी। ओके, तो अभी सिंस तूने बोला कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ज्यादा स्कोप है, वी नीड मोर डेवलपर्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एरिया, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन जनरल क्या होता है? क्योंकि जब आप कॉलेज में सीखते हो तो बच्चों को सिर्फ हाँ बहुत नैरो चीजें सिखाई जाती है, ये तेरा सर्चिंग एल्गोरिदम है, ये तेरा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, हाँ। ये तेरे को याद रखना है क्योंकि जॉब में तेरे को पूछेंगे इंटरव्यू में। बट जब नहीं वैसा, हाँ। प्रोडक्ट इफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट बता क्या होता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ कि ठीक है, इफ आई जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हाट बेसिकली अ प्रोडक्ट इज, ठीक है, if I take about like let's take up example with Geeks for Geeks, like people will be very much aware about what is Geek for Geeks. तो Geek for Geek is a product, ठीक है। if I talk about उनका प्रोडक्ट, वो कैसे प्रोडक्ट है देख, पहला तो वो वहाँ पे कंटेंट देता है सारा, people can go, they either create their own content or they read content from Geek for Geeks, एक चीज ये हो गई। दूसरा, if you could see, Geek for Geeks also provide internships and other technical trainings, तो वो एक तरह से they are upselling their things, ठीक है। this is kind of a product. So product basically doesn't mean ki you are selling some commodity, but you are selling some value as well, is also a product. So Geek for Geek is just taking example, is very like near to interns, like yeah, near to students के लिए अगर मैं example लूँ, Geek for Geeks is one of the product, if I like kind of a product, and developing website for Geek for Geeks is kind of a product development. तो उनकी जो भी requirement हो, just take an example, Geek for Geeks wants to like पुणे में सारे colleges में they are offering that they are like providing online classes, and using that they will be teaching Java or some other programming language. So this is one of the way of they are selling their product, because it will run revenue for Geek for Geeks. This is one of the product if I talk about. Basically, it's selling rice, dal, shampoo is not exactly product. Like that is also a product, but that is a commodity. But not exactly selling a commodity is product. If I just talk about Swiggy or Zomato, they are not selling something, but they are providing services via their applications. So this is also kind of a product development kind of a thing. Another thing is like if I just take about like very like I guess people are very much aware of Udemy or LinkedIn Learning और बहुत सारी like e-learning websites हैं. So these are basically providing your content via videos or via online lectures. Yeah, if I talk about Educra, they are providing through lectures or like whatever course you want to opt in. So this is also a product. So they are providing you content, but you have to pay for that content, and that content and that paying thing will bring them revenue. So one of the things is this. And like if I just talk about अगर Udemy पे हमें website, Udemy के लिए website बनानी है, तो there are a lot of things are involved. अब हर रोज उस पर कोई नया क्रिएटर आ जाएगा, उसको अप्रूव करना है कि वो सही क्रिएटर है कि नहीं, या ऐसी कॉलेज का स्टूडेंट आ गया, वो थोड़ी ना कंटेंट डाल सकता है Udemy पे और सेल करने लगेगा। और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें होंगी। दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस आई एम टेलिंग कि कोई कंटेंट क्रिएट करने के लिए आता होगा, तो उसको वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते होंगे, तो उसके लिए उन्होंने कुछ बनाया होगा यूडेमी पे जो हमें नहीं दिखता है बट उसे दिखता होगा। दिस इज वन ऑफ द थिंग। अनदर थिंग इज कि यूडेमी पे मान ले मैंने अपना कंटेंट डाला, उसके बाद वो कंटेंट अप्रूव करने के लिए टीम होती होगी, उनके लिए एक पोर्टल होता होगा, वो देखते होंगे। दीज आर बेसिकली बैक फेसिंग एप्लीकेशन जो कि उनकी प्रोडक्ट टीम या उनकी लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम या ऑपरेशंस टीम यूज करती है। अनदर थिंग इज जो हम देखते हैं, इफ आई टॉक अबाउट, मान लो मुझे GCP पे कुछ सीखना है, if I like exploring data lakes in GCP, if I'm exploring if I want to learn something about GCP and I want to search a course on Udemy, I will go and search on their portal, तो मुझे वहाँ पे 10-15 क्रिएटर्स का डेटा दिखेगा। सो ये एक डेवलप करना, दिस इज काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और सिर्फ ये वेबसाइट बनाना इज नॉट बेसिकली अच्छा जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया, रिएक्ट का कोड लिख दिया, रिडक्स यूज कर लिया तो फ्रंट एंड बन गया। फ्रंट एंड तो बन गया, अब पीछे से इतना सारा डेटा है, मतलब वर्ल्ड मान लो 50,000 क्रिएटर्स हैं जो रिएक्ट पे डेटा दे, रिएक्ट के लिए जस्ट टेक एन एग्जांपल, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए मतलब तुम्हें डेटा मतलब कंटेंट दे रहे हैं कि कोर्सेज दे रहे हैं। अब तुम सर्च करोगे मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट, लाइक यू वांट टू लर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट ओवर देयर लाइक देयर ग्लोबल सर्च, तो तुम्हें पेजिनेटेड फॉर्म में बहुत सारा डेटा दिखाएगा। अब वो कैसे मैनेज होता है या वो डेटा लेके कैसे मैनेज होता है, तो देयर इज लॉट ऑफ इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, बहुत बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं।
So basically you will be learning those things. ठीक है. This is basically a gist of product development. Like this is non-technical discussion, and doing all things is very much technical.